स्टूडेंट्स, मैं क्लास है इसको रिकॉर्डिंग मोड पर डालता हूँ. नाउ लेट मी share my screen with you. Let's see. Tell me now the screen is visible to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, this was the information we have discussed yesterday about overview and definition of politics. I think अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. Let's see. That is the slide we need to discuss today. Political science and other social sciences. We discussed so far yesterday about overview and definition of political science, scope of political science, importance of political science. Now we are discussing political science and other social sciences. They're saying political science is the systematic study of the state and the workings of the political economy. The study of the political science gives people the ability to influence and persuade the authorities to conform to broad developmental thrust and to steer the direction in which the government is headed. Try to focus on what they are saying. They are saying political science gives people the ability to influence and persuade. So this is what the power of the subject. Like if you have studied this subject, from your heart, I would say this thing. अगर हमने इसको दिल से पढ़ा हुआ है, इसको समझा हुआ है, तो you could understand कि ये आपको एबिलिटी देता है किस चीज़ की इन्फ्लुएंस करने की, परसुएड करने की अथॉरिटीज को, कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप सोच रहे हो, जो आप समझ रहे हो पॉलिटिकल सिस्टम को, स्टेट को, उसके कंट्रोल को, वो आप इसमें अथॉरिटीज को इन्फ्लुएंस करके, परसुएड करके वो चीज की तरफ ले जाते हो. स्टीर द डायरेक्शन इन विच द गवर्नमेंट इज हेडेड. मतलब जहां पर गवर्नमेंट एक्चुअली में एक्शन कर रही है, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, वट एवर functions government is performing, actually these are done by minds of people like you, those who have got the actual understanding of the system, entire system. Since political science is concerned with the study of global political economy, it has linked to other social sciences as well as. So हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि उस लेवल पे ये जुड़ी हुई है, तो कह रहे हैं तो इसका लाजमी है क्या दूसरी जो सोशल साइंसेस है उसके साथ कनेक्ट हो पाना, जैसे हिस्ट्री होगी, सोशियोलॉजी होगी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन सब के साथ ही जुड़ी हुई है. It needs to be mentioned that political science is that branch of the social sciences that is concerned with the working of the global political economy, hence shares a symbiotic relationship with the other social sciences that study the other parts of global political economy. We have chosen history, sociology, philosophy, psychology, these disciplines that have a bearing on how political scientists go about the work. They are trying to tell कि जो political science है सिर्फ एक political setup को डिस्कस नहीं कर रही है, ये दूसरे साइंसेस के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित कर रही है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है. If I take example of sociology, it seems like it's a very simple subject, discuss about a society, but try to understand whatever it is happening into the society. On the basis of political people, they take their decisions. This is how their outcomes it comes out. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े डीप में समझने की ज़्यादा ज़रूरत है मुझसे. अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यू कैन राइट डाउन एनीथिंग यू कैन. सो ये आपकी डेफिनेशन या स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसमें क्वेश्चन आए कि हाँ जी डिस्कस अ रोल ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस. यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स. कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है पॉलिटिकल साइंस को समझने की, तो इसके लिए हमें जो अदर सोशल साइंसेस है उनको साथ में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जोड़ना पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री भी है, सोशियोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है. तो ये सब चीज़ों को हम साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग दिस डेज. History, sociology, and political science. Political science is intimately linked to history as a pattern of the past provides views to the future. यानी अब हम बोलते हैं कि हिस्ट्री क्यों पढ़ी जा रही है, बहुत बार बोला जाता है कि क्या
फालतू का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में कुछ नहीं मिलता है। हिस्ट्री में बहुत कुछ मिलता है। हिस्ट्री में हमें क्या मिलता है? हिस्ट्री में पता लगता है कि हमने जो पास्ट में क्या गलतियां की और क्या अच्छा हुआ। सो व्हेन यू कंपेयर, व्हेन यू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, उसी के बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट होती है। जो भी पिछले जो पॉलिटिशियंस आए हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, जिन्होंने जो भी पास्ट में डिसीजंस लिए हैं, दीज आर एक्चुअली अफेक्टिंग द लाइफ्स एंड देयर डिसीजंस, इट टेल्स यू दैट हाउ इट हैज हैपेंड। मैं जैसे आपको बताता हूँ, डिमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में हुई, ठीक है, लेकिन ये पहली बार नहीं थी, पहले भी हो चुकी है। लेकिन व्हाट इट हैपेंस, जो पहले हुई थी, अगर हमने उसके थ्रू सबक सीखा होता, हमने उसको समझा होता कि उसके आउटकम में क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, या इस चीज को प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, तो यू वुड फाइंड आउट ये शायद हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता। लेकिन डीप में जाए तो हमें पता लगता है कि इस चीज को सिर्फ एक गवर्नमेंट ने नहीं इम्प्लीमेंट किया है, और गवर्नमेंट्स ने भी ट्राई किया था। दे वर हैविंग द सेम प्लान इन देयर माइंड, बट दे कुड नॉट इम्प्लीमेंट इट। वही रीजन है, वही चीज है जो हम इसमें बताने की कोशिश करें, क्योंकि उनको लगा कि शायद हिस्ट्री हमें ये हिंट दे रही है कि हमें ये इम्प्लीमेंट ना करें, अदरवाइज ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। दिस इज हाउ दे आर सेइंग कि पॉलिटिकल साइंस जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ये क्लूज मिलते हैं, ये पैटर्न्स हमें प्रोवाइड होते हैं कि क्या गलतियों से हम कोई सीख ले सकते हैं। There can be no better guide to understanding the present and to predict the future than by the studying the events in the past and extrapolating them to the future. कहते हैं इससे बड़ा कोई गाइड नहीं हो सकता है कि जो हम हिस्ट्री में चीज़ें कर चुके हैं, अगर हम फ्यूचर में वो चीज़ें दोहरा रहे हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हद तक रह सकती है। हमें इन सब चीज़ों को देखना होगा, उसके बेसिस पे ही पॉलिटिकल जो ताना बाना है वो बुना जाता है। जो फॉरेन रिलेशंस हैं, इंटर जिसको बोल सकते हैं, इन साइड ऑफ द कंट्री जो सिस्टम चल रहा है, उन सब चीज़ों को उनके ऊपर बेस्ड हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने है कि इंडिया जो है इस टाइम पे आपको पता है एक बड़े क्रूशियल स्टेज से गुजर रहा है कि हमारे जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ इस टाइम को अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में हमें पता ही है कि पुराने टाइम से हमारे साथ कुछ ज़्यादा बड़ी अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। आज की डेट में नेपाल की बात करें तो उसके साथ भी हमारा रिलेशन इतने अच्छे नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इफ यू सी दिस थिंग दैट इस चीज़ का कोई भी दुश्मन और देश फायदा उठा सकता था, चाइना शायद इसको उठाने की चाह भी कर रहा था। लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो है शायद इस टाइम पे इंडिया की इतनी अच्छी है कि जो बहुत ही दूसरी कंट्रीज हैं, दे हैव कम क्लोजर एंड स्ट्रॉन्गर विद इंडिया, कि कोई भी दूसरी अगर चाइना या कोई और कंट्री जो है इंडिया के ऊपर अटैक करने की टाइम कोशिश करती है तो उनको दूसरी जो सुपर पावर्स हैं उनकी मार भी झेलनी पड़ सकती है। तो ये आपके फॉरेन रिलेशंस हैं, आपकी फॉरेन स्ट्रैटेजी है, तो फॉरेन पॉलिसी है, जो दूसरे देश हैं आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं और आपके साथ खड़े हो रहे हैं इस टाइम पे। दिस इज हाउ इंडिया कुछ भी जो अपने डिसीजन है वो स्ट्रांगली ले सकता है। और ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री में सीखने से मिल रही है कि जिस तरह की विसिनिटी में हम रह रहे हैं उस तरीके में हमें जो है वो आउटर सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एक कोलैबोरेशन बन जाएगी जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान हो गया, हो सकता है और कंट्री उनके साथ जुड़ जाए और इंडिया यहाँ पर अकेला नजर आए। तो इस टाइम पे इंडिया की जो मनोस्थिति अगर हम उसकी बात करें दैट विल बी वीकर एट दैट टाइम, लेकिन हम इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्गर होकर निकल रही हैं। ये सब इन्हीं चीज़ों का नतीजा है जब हम पॉलिटिकल जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे ऑफिस से बचे हैं, जो इन जॉब्स पे गए हुए हैं और इन सब चीज़ों को हिस्ट्री से डिस्कस करके, हिस्ट्री से सीख लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट दे ट्राइंग। Next, political science is closely intertwined with sociology as both branches attempt to study human behavior in groups. कहते हैं नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम सोशियोलॉजी के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। ब्रॉडर क्वेश्चंस हैं, आपको इसके ऊपर अपने नोट्स बनाने होंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के साथ किस तरह से अपना जो तालमेल बैठाने की कोशिश करें। सोशियोलॉजी क्या है? ह्यूमन साइंस, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना। आज की डेट में हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है किस तरफ चल रहा है, मैंने आपको आगे भी बोला कि जैसे आप देख रहे हो कि डिमोनेटाइजेशन का टाइम आया तो जब इलेक्शंस हुए तो लोगों के मन में ये था कि शायद इस पॉइंट के कारण जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस हार जाएगी, लूज कर देगी, क्योंकि लोगों के मन में रोष है। बट यू सी दैट दे हैव स्टडीड द ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों के ऊपर हावी था वो आज भी है, वो है हमारे देश की देशभक्ति। तो इंडिया ने जो डिसीजन लिया है, आपको पता है, जो पाकिस्तान के रिलेशन में हमने जो भी बड़े कॉल ये इंसिडेंट्स हुए जिसके अंदर हम लोगों ने उनके एरिया में जाकर कुछ जिसको बोलते हैं एक्टिविटीज़ की और हमारी डिफेंस ने और कहीं ना कहीं मैसेज दिया, ना सिर्फ उन नेशंस को जो हमारे अगेंस्ट चल रहे हैं, बल्कि इन टू द माइंड ऑफ इंडियन पीपल एज वेल,
कि ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब इंडिया ने इस तरह का कोई ऑपरेशन किया है दूसरी कंट्री की धरती पर जाकर। तो दैट वाज समहाउ दी व्हाट यू कॉल, जो ह्यूमन बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टडी हुआ कि जब ये चीज़ ऊपर आई तो बाकी सब चीज़ों को लोगों ने दरकिनार कर दिया और इस चीज़ को पॉजिटिव में रखा कि हाँ, कहीं ना कहीं जो हम इंडिया की हमारी सुरक्षा है, डिफेंस है, दैट इज गोइंग इनटू अ सेफर हैंड्स इफ वी विल गो विद दिस। So that is again the study of sociology. The study of the interaction between the people and the state is something that both sociology and political science aim to do. And hence there is a symbiotic relationship between sociology and political science. तो ये दो साइंसेस को उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली एक्चुअली में रिलेशनशिप है क्या पॉलिटिकल साइंस का, अगर हम हिस्ट्री के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं या हम इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं सोशियोलॉजी के साथ। तो दिस इज द एक्चुअल थिंग जो क्रक्स आपको बताया, इसके आगे आप इसको जिसको बोलते हैं एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में और अच्छे से डिटेल में कर सकते हो, लेकिन इसकी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि सोशियोलॉजी में हमें जो है ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश मिल रही है, जिसके कारण हम पॉलिटिकल साइंस की हेल्प के साथ कंट्री में वैसा सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं जिससे कि उस कंट्री की डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें अच्छे से चलती हैं। और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हिस्ट्री इसलिए इसके साथ कनेक्ट की जाती है ताकि पुराने टाइम से हमें जो सीख मिली है उसको हम फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकें। फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। नाउ अनदर टू साइंसेस, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की बात करें। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज टू डू विद द फिलोसफी। Since political behavior and governance are studied in the terms of political philosophy, which deals with abstract notions of the role of the state and the relationship of people and the state, with the emphasis on understanding the concepts of public welfare and larger social good. Both political science and philosophy have common grounds in these aspects. So philosophy के साथ political science में हमें इस चीज़ की हेल्प मिल रही है, क्या कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों का कॉमन ग्राउंड बन रहा है। किस चीज़ का? पब्लिक वेलफेयर एंड लार्जर सोशल गुड का। फिलोसफी में क्या बता रही है कि लोगों के साथ समान होना चाहिए, पब्लिक जो इक्वलिटी है उसकी बात हो रही है, लोगों को वेलफेयर जो है पब्लिक वेलफेयर उसकी बात कर रही है, लार्जर सोशल एरिया के ऊपर जो है कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई फैले उसकी बात हो रही है। सो पॉलिटिकल साइंस को जब हम फिलोसफी के साथ कंपेयर कर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली में ह्यूमैनिटेरियन अगर ग्राउंड पे जाकर हम सोचते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ों को उस टाइम पे देखना चाहिए। आपके सामने कोरोना का टाइम चला तो यू मस्ट हैव सीन कि कई चीज़ों में गवर्नमेंट ने फिलोसफी का जो ये कंसेप्ट है अप्लाई करने की कोशिश की, जिसमें जो लोग कम्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, जो टोल टैक्स था उस टाइम पर उन्होंने बंद कर दिया कि ये नहीं कि इस तरह पे यहाँ पे पैंडेमिक की हालत चल रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनसे टोल टैक्स भी वसूला जाए। तो उस टाइम पर टोल टैक्स बंद कर दिया गया कि किसी भी नहीं गुजरने वाले वाहन से इस तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी गाड़ियों की तरफ से भी हेल्प की गई जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश की गई है। इट डज नॉट हैपन, आई वुड से दैट दिस डज नॉट हैपन ओनली हियर, इट हैपेंड इन द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि हम इसको ग्लोबल ग्राउंड के ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को वो फेल हुए हैं, उनके आलोचना भी होंगे, उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि आपने इस टाइम पे भी ये चीज़ें नहीं की। ट्राई टू सी दिस थिंग, अगर ये इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ हो और एट द टाइम ऑफ दिस थिंग इफ़ यू वर्क ऑन इट, तो देखिए उस कंट्री का सेटअप भी बहुत अच्छा होगा, जो उस टाइम पे डिसीजन लेंगे लोगों को एक्चुअल में फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर जो भी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट इस चीज़ के साथ सपोर्ट कर रही है उसको लोगों का फेवर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें उस ग्राउंड के ऊपर हमें समझने के लिए एक विचारधारा देती है, आइडियोलॉजी देती है। द फाइनल सोशल साइंस डिसिप्लिन चूजन इन इज साइकोलॉजी, and as this discipline studies human behavior in society, there are meeting points between political science and psychology, as they both are concerned with the examination of why people in the larger political economy behave the same way they do. साइकोलॉजी क्या सिखा रही है पॉलिटिकल साइंस के साथ? देखो, हर चीज़ को पॉलिटिकल साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर इसको अच्छे से आप लोग समझ लोगे तो आप समझिए कि आप एक न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर डिस्कशन ही नहीं कर सकते, आप देश को चलाने के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया विचार दे सकते हैं, बहुत बढ़िया सजेशंस दे सकते हैं। और इसमें उन्होंने यही बताया कि एक कंट्री में लोग किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं उसको हम साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंडीशंस हैं,
उस तरह का सिस्टम है। अगर हम इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम को फॉर एग्जांपल कंपेयर करने की कोशिश करें, यू वुड फाइंड आउट लॉट ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, वो एक डेवलप्ड नेशन है। उनके जो सिस्टम सोसाइटी में चल रहा है वो डिफरेंट वे से चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो चल रहा है बहुत डिफरेंट चल रहा है। हमारे तो मेडिकल जो है सबसे बड़ा एक इशू है कंट्री में। दोज कंट्रीज, अगर कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, यहाँ पर मेडिकल फ्री है। फ्री का सेंस कि कोई भी सिटीजन अगर किसी तरीके का मेडिकल पाना चाहता है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल जो है वो हेल्प है वो ले सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल्स उसकी ही तर्ज के ऊपर जिसको बोलूँगा बनाए गए हैं, लेकिन अभी हम उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हुए हैं। वी हैव नॉट दैट मच बिकम कॉम्पिटेंट कि हम उस लेवल पर जाकर बात कर सकें कि यस वी आर ऑफरिंग द सेम मेडिकल फैसिलिटीज दो द अदर डेवलप्ड नेशंस दे आर ऑफरिंग। सो हमारी सिचुएशंस ऑल्दो डिफरेंट रहेंगी उनके नेशंस के साथ। सो साइकोलॉजी हमें ये प्लेटफॉर्म देती है उस कंट्री की साइकोलॉजी जो लोगों की है, उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है उस तरह का क्यों है उसको समझने के लिए। और once you will understand that thing, you can make policies according to it, which will not only benefit to the people of that country, but it will also benefit you in terms of because you are becoming political scientist. तो ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है आपको इसके ऊपर ही हेल्प देगा। तो ये जो चारों हमने अभी पढ़ी हैं कनेक्शन विद अदर सोशल साइंसेज, अगर इसका बेस समझ पा रहे हैं तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े आराम से लिख पाओ। पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री में क्या फायदा हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी में क्या फायदा हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस का फिलॉसफी में क्या फायदा हो रहा है, और पॉलिटिकल साइंस का साइकोलॉजी में क्या फायदा हो रहा है। फिलॉसफी है पब्लिक वेलफेयर, लार्जर सोशल गुड की बात कर रही है। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की तरह ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रही है और देख रही है कि क्यों लोग इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। हिस्ट्री से हमें ये आइडिया मिल रहा है कि जो हमने पीछे हिस्ट्री में कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उनका आउटकम्स क्या आ रहा है, उनके बेसिस पे हम जो हमारी फ्यूचर पॉलिसीज हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। फाइनल थॉट्स। Finally, political science cannot be a standalone or isolated field, as all branches of the social sciences purport to explain the larger questions concerning people and state. Hence, there are symbiotic relationships between political science and other subdisciplines of social sciences, as they have common ground in the quest to understand how political systems work and how politics and governance play themselves. सो फाइनल थॉट में क्या बता रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस अकेली नहीं काम कर रही है, कैन नॉट बी स्टैंड अलोन, आइसोलेटेड फील्ड एज ऑल ब्रांचेस ऑफ द सोशल साइंसेस जो हैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इसको सपोर्ट कर रहे हैं। किसमें? क्योंकि हम एक स्टेट को चलाने की बात, एक देश को चलाने की बात कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को समझना बहुत ज़रूरी है, इन साइंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला कि अगर हम इन साइंसेस को नहीं समझ पाएंगे इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटिक्स में अगर हम पॉलिटिकल सेटअप की बात करता हूँ तो कुछ ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आज भी एलिगेशन ये लग रहा है कि वो हमारे सेटअप में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उनके ऊपर ये एलिगेशन क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर ये बताया जा रहा है कि उनका जो सेटअप है, माइंड सेटअप है, वो हमारी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के साथ मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो हमारे सेटअप में नहीं रहे हैं। उनको बोला जा रहा है या उनको कहा जा रहा है कि ये दूसरी कंट्री में ज़्यादा रहे हुए हैं, वहाँ पे पले बड़े हैं, तो इन लोगों को वहाँ के सेटअप की जो नॉलेज है वो ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं ये जो है किसी जो लोग हैं इनको इंडियन सेटअप की। तो मैं इसको सपोर्ट या फेवर या डिसफेवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल करियर्स बनाए जाते हैं, एक देश को चलाया जाता है, उन पॉलिसीज के साथ देश चलता है। आपके सामने नई एजुकेशन पॉलिसी निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है कि कोई एक आदमी है या एक आइडियोलॉजी, एक पार्टी है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और ये चीज़ लागू होगी? बिल्कुल गलत। इसके ऊपर बहुत सारे आप जैसे बच्चों के माइंड हैं जो उन्होंने पॉलिटिकल सेटअप को समझा है, अंडरस्टैंड किया है, दे आर सीइंग कि आगे आने वाला टाइम कैसा है। अगर हम उसी टाइम के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी को बोला जाता है, अगर एंड्रॉयड की एग्जांपल दी जाती है कि नोकिया जो कि मार्केट लीडर था,
किसी टाइम पर, अगर आज की डेट में उनकी बात की जाती है, वो मार्केट से बाहर हो गया, उसके कंपेयर में बहुत सारी कंपनीज आ जाकर बैठ गई हैं। नोकिया को पोजीशन नहीं मिल रही है दोबारा से मार्केट में एंटर होने की, क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को नहीं चलाया और वो डिसीजन नहीं ले पाए। और उसी तरीके से स्टेट भी चला जाता है, अगर कोई नेता उस टाइम उस समय का सही डिसीजन, सही उपयोग कर सकता है, तो आप देखेंगे मोदी जी दोबारा देश को चलाने के लिए वापस चुन लिए गए, बशर्ते कि डिमोनेटाइजेशन के ऊपर सारा वर्ल्ड उनके ऊपर ताने कस रहा था कि ये पार्टी कभी भी दोबारा कंट्री में वापस नहीं आ सकती। तो सोचिए सब तो ये फाइनल थॉट्स आपको देने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल साइंस बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आपके पास ये सोच, ये चीज अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मैंने दूसरी साइंसेस की जो आइडियोलॉजी है उसको पॉलिटिकल साइंस के साथ किस तरह से कंपेयर करना है, किस तरह से समझना है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आप सब्जेक्ट को सिर्फ पेपर में लिख ही नहीं पाएंगे, बल्कि अंदर से आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंगली उसके अंदर पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, ऐसी कोई बात नहीं। बशर्ते आप किसी का क्रिटिसिज्म डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हमने 9 पॉइंट्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, हमें किसी का डायरेक्टली क्रिटिसिज्म नहीं करना है, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना। मैंने किसी पार्टी का नाम डायरेक्टली नहीं ले रहा हूँ क्रिटिसिज्म के लिए, फेवर के लिए कह सकता हूँ, क्रिटिसिज्म में किसी का नाम नहीं लूंगा। तो सिमिलरली आप भी डायरेक्टली अगर एग्जाम्पल्स डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली किसी के बारे में नहीं लिखिए। तो इस तरह से ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही है, किस तरह से पॉलिटिक्स रोल प्ले कर रही है। ठीक है जी। सो दैट वाज द एंड ऑफ दैट कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ जिसको हम बोल रहे थे कि इसका जो रिलेशन है अदर सोशल साइंस के साथ कैसे चल रहा है। अब अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, ताकि मैं उसको दोबारा से रिपीट कर पाऊँ, अदरवाइज मैं जो आपको क्वेश्चंस लिखवाना चाहता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चंस लिखूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? या टॉपिक आपको समझ आ गया जो अब तक हमने किया है? यस सर। क्लियर बेटा सबको? यस सर। चलिए फिर, गुड, चलिए फिर ठीक है, मैं अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपको मैं क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। हम लोगों ने लेक्चर में जो अंडरस्टैंड किया, इसको वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ में, तो मैं इसको भी रिकॉर्ड को स्टॉप कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं आपके जो गूगल क्लासरूम उसके ऊपर भी डाल रहा हूँ, प्लस इसकी एक कॉपी आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल। उसका लिंक भी आपको दे दूंगा ताकि आप यूट्यूब से भी ये जो लेक्चर है इसको आप देख, ठीक है। लेट मी फर्स्ट स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं, या इसके अंदर ही मैं क्वेश्चंस भी आपको करवा दूँ, ये भी करवा देता हूँ, तो मेरे भी रिकॉर्ड हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे, अगर हम उनकी बात करें, that was up to here, importance of political science, right? Now write down this. Compare political science with other social sciences. Compare political science with other social sciences. So can you repeat? Compare political science with other social sciences for a systematic study of the state. For the systematic study of the state. Elaborate the statement. Next question. Elaborate the statement. Inverted commas begin. Political. Elaborate the statement. Elaborate the statement. Inverted commas begin. Political science is, inverted commas डाल लेने हैं, उसके अंदर हमें लिखना है political science is concerned. Political science is concerned with the study of. Political science is concerned with the study of global political economy.
Political science is concerned with the study of global political economy, commas close. तो एक स्टेटमेंट है आपके सामने रखी गई है, पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इसको हमें इलेबोरेट करना है और इसका आंसर भी यही रहेगा कि हमें जो दूसरी साइंसेस हैं ये पढ़नी पड़ेंगी, और प्लस जो हमने कल पढ़ा था दैट वाज जिस पे हमने बात की थी, there were these points, 5 sub-disciplines, that political theory, public administration, comparative politics, international relations and public law। तो इन सब की भी बात इसके अंदर हमने करनी है और बताना है कि अगर इनको अच्छे से हम समझ पाते हैं तभी हम ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज discuss the role of political science. Discuss the role of political science with symbiotic relationship with history, relationship with history and sociology. History and sociology. Next question is the same thing, the first part you have written. रिलेशनशिप के बाद यहाँ पे लिख लीजिए फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। क्या तो ये स्लाइड में जो कल हमने क्वेश्चंस लिखे हैं और आज क्वेश्चन लिखे हैं, इसको हम कंप्लीट फॉर्म में अगर देखें तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो गया। अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी, मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप कंटिन्यूसली रेगुलर लेक्चर लगाएंगे तो आपको शायद ही किसी और इंफॉर्मेशन लेने की किसी और चीज़ से जरूरत है। इसके थ्रू अगर आप इसको ही तैयार करो तो आप बहुत अच्छे, जिसको बोलते हैं पास विद द फ्लाइंग कलर्स, आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। चलिए, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग। वीडियो हैवी हो जाएगी, आपके लिए डाउनलोड करने की दिक्कत आ जाती है। उसके साथ साथ फिर मैं आपके साथ जो बाकी आपकी इश्यूज कोई क्वेश्चन सब